Good morning students, welcome to SST's class. Yesterday we have completed the topic climate. So what is climate? Climate of a place is the average weather condition over a long period of time. This is known as the climate. So different places in the world experience the different types of climate, right? Some regions are very hot and dry, some are very cold, and some areas are having moderate rainfall. So every part of the world having the different types of climate. And also we have seen the factors which affect the climate. First one is the latitude, second one is the altitude, third one is the winds, fourth one is the distance from the sea, and the next one is humidity, and the last one is ocean currents. So we have also learned the first topic, that is latitude, that is distance from the equator, means the inclination of the sun rays. The places which falls near the equator that receives the maximum heat from the sun, because sun rays directly falls vertically near the area of the equator, and the places which falls near to the north pole in the top or in the south pole in the bottom, because sun rays are inclination there, that is why that areas receive the minimum heat from the sun, and that places are very cold. So that topic we have already covered yesterday. Today we are going to start our next topic, that is the altitude or height above the sea level. So do you know why people go to the hill station in summers? Why only in summers people go to the hill station? There is a reason behind this. Because hill stations are cooler because they are located high above the sea level. जो भी हिल स्टेशन है वो एक सी लेवल के ऊपर रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, समर में भी वो ठंडे होते हैं, वो जगह कोल्ड होती है. सपोज दिस इज अ सी, एंड जो भी माउंटेन्स होते हैं या फिर जो हिली एरियाज होते हैं वो हमेशा सी लेवल से ऊपर होते हैं, इसीलिए वो ठंडे होते हैं. रिमेंबर दिस इज द सी. अगर हम इस माउंटेन को देखें तो ये सी के लेवल के ऊपर है, एंड जो भी हिल स्टेशन या जो भी ठंडी प्लेसेस आती हैं, कोल्ड प्लेसेस आती है, वो हमेशा सी के लेवल के ऊपर होती हैं, इसलिए वो ठंडी होती हैं समर में भी. रिमेंबर दिस. द प्लेसेस विच फॉल्स about the places which are having height above the sea level, that places are cold during the summer season also. So the higher we go, the cooler it becomes. जैसे ही हमारी हाइट, जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगी, वैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, फॉल्स होगा. टेम्परेचर फॉल होगा मीन्स वो ठंडा होते जाएगा. जैसे ही हम हाइट में ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम ऊपर हाइट बढ़ते जाएंगे, माउंटेन्स की तरफ जाएंगे या हिली एरियाज की तरफ जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर कम होता है मीन्स वो ठंडा होते जाता है. सो दैट इज द रीजन द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स. इट इज द बिकॉज टेम्परेचर फॉल्स विद द हाइट गेन. रिमेंबर, टेम्परेचर फॉल होता है जब हाइट बढ़ती है. जब हाइट बढ़ती है तब टेम्परेचर फॉल होता है. रिमेंबर दिस. इट इज कोल्ड इन द हाई माउंटेन्स बिकॉज माउंटेन्स आर लोकेटेड एट द हाई एल्टीट्यूड. माउंटेन्स, जहाँ पे भी माउंटेन्स है वो जगह ठंडी क्यों होती है? बिकॉज जो भी ये माउंटेन वाला एरिया होता है वो हमेशा सी लेवल के ऊपर होता है. तो जो भी एरिया सी लेवल के ऊपर होता है, हमने पढ़ा अभी, जैसे ही हाइट बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है मीन्स कूल होता है, ठंडा होता है. सो माउंटेन एरिया या जो भी हिल स्टेशन है वो हमेशा ऐसे जगह पर होते हैं जिनकी हाइट सी से ऊपर होती है, और वो समर सीजन में भी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं. So it is cold in the high mountains because mountains are located at the high altitude. High altitude means they are having height above the sea level. Ludhiana and Shimla are at the same distance from the equator, but Shimla is cold while Ludhiana is hot in the summers. Can you tell me the reason? Shimla is located 2150 meters above the sea level, whereas Ludhiana is only 250 meters above the sea level. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लुधियाना एंड शिमला का. लुधियाना और शिमला की अगर हम बात करें तो दोनों का सेम डिस्टेंस है इक्वेटर से. लुधियाना एंड शिमला आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. हमने ये भी देखा था जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास आती हैं वो क्या होता है, वो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करती हैं. दैट द प्लेसेस विच फॉल्स नियर द इक्वेटर दैट रिसीव द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, बिकॉज सनरेज क्या होती है, डायरेक्ट वर्टिकली फॉल होती है. अब अगर हम इस एग्जांपल से देखें तो शिमला एंड लुधियाना दोनों का डिस्टेंस सेम है इक्वेटर से, तो दोनों पे हीट भी सेम ही जाएगी बिकॉज दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है इक्वेटर से.
शिमला एंड लुधियाना हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो इस हिसाब से दोनों में हीट भी सेम जानी चाहिए, सन की जो सनरेज है वो भी सेम जानी चाहिए। बट समर सीजन में क्या होता है, जो शिमला है वो कोल्ड होता है, बट शिमला इज कोल्ड वाइल द लुधियाना इज हॉट इन समर्स। समर सीजन में सन की हीट के बाद भी शिमला क्या है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है, लुधियाना क्या होता है, हॉट होता है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अगर सी लेवल से हम देखें तो सी लेवल से शिमला की हाइट है 2100 मीटर अबाउ, राइट। शिमला इज लोकेटेड 2150 मीटर अबाउ द सी लेवल। सी लेवल से शिमला का डिस्टेंस कितना है, 2150 मीटर, और यही सी लेवल से लुधियाना का डिस्टेंस होता है 250 मीटर्स। सो अभी हमने क्या देखा, जैसे ही हम एक हाइट पर जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, राइट। टेम्परेचर फॉल होता है मीन्स ठंडा होते जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे हाइट बढ़ेगी 2150 मीटर शिमला के लिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। वही सेम लुधियाना, सेम टाइम पे समर्स में लुधियाना का डिस्टेंस सी से कितना है, 250 मीटर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट होगा ड्यूरिंग द समर सीजन। अंडरस्टैंड दिस? जैसे ही हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं हाइट पे, टेम्परेचर फॉल होता है मीन्स गिरना स्टार्ट होता है, इट बिकम्स कूलर। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइट शिमला हैज cold temperature in the summer season while Ludhiana is having the hot temperature during the summer season। जबकि इक्वेटर से दोनों का डिस्टेंस कितना है, सेम है, बट बिकॉज ऑफ दिस सी से शिमला की हाइट ज्यादा है, सी लेवल से शिमला की हाइट ज्यादा है, इसलिए वो ठंडा रहता है ड्यूरिंग दी समर सीजन ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट वन इज winds। Wind means air that is moving across the surface of the earth। Remember this, what is wind? Air that is moving across the surface of the earth। Now see the paragraph, winds affect the climate of a place they blow to। Winds coming from the hot areas increase the temperature of the place they blow to, while winds coming from the cold areas lower the temperature of a place they blow to। For example, with the help of this diagram, I think you can easily understand। This is the hot air। ये एयर है जो हॉट है, गर्म हवा है। ये अगर किसी प्लेस से ट्रेवल होकर आ रही है, किसी गर्म जगह से, ऑलरेडी कोई जगह है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट है, वहाँ की ये एयर ट्रेवल करके यहाँ पर आ रही है, और कहाँ पर जा रही है, फॉर एग्जांपल नागपुर में जा रही है, तो ये नागपुर के टेम्परेचर को क्या कर देगी, हॉट कर देगी। मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द नागपुर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज। रिमेंबर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है मतलब इट बिकम्स हॉट, एंड टेम्परेचर डिक्रीज मीन्स इट बिकम्स कूल। रिमेंबर दिस। सो फॉर एग्जाम्पल, एक जगह से एयर ट्रेवल होकर आ रही है ऑलरेडी किसी गर्म जगह से, राइट। ऐसी कोई जगह है जो ऑलरेडी हॉट है, वहां से एयर ट्रेवल होकर आ रही है, तो वो एयर कैसी होगी, ऑलरेडी हॉट होगी, क्योंकि वो हॉट एरिया से आ रही है, और वो हिट कर रही है नागपुर को, नागपुर में जा रही है वो हवा, तो वो नागपुर के क्लाइमेट को भी क्या कर देगी, हॉट कर देगी। मीन्स वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस दे ब्लो टू। विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस दे ब्लो। रिमेंबर दिस, विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस दे ब्लो टू। अगर गर्म हवा कहीं से आ रही है तो जिस एरिया में वो जाएगी उस एरिया को भी क्या कर देगी, हॉट कर देगी, वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड इसका अपोजिट, while winds coming from the cold areas lower the temperature of a place they blow to। now here see, this is the cold air, ये ठंडी हवा है। अभी अगर ये किसी ऐसी जगह से आ रही है जो ऑलरेडी ठंडा है, सपोज किसी हिल स्टेशन से या माउंटेन्स से, ये जो एयर है वो ट्रैवल होके किसी और जगह पर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल शिमला जा रही है, तो वो शिमला का टेम्परेचर कैसे कर देगी, कूल कर देगी। मीन्स वहां का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। डिक्रीज होगा मतलब ठंडा होगा, इट बिकम्स कूल। सो फॉर जस्ट रिमेंबर, अगर हॉट एयर है तो वो जिस जगह पे भी हिट करेगी वहां का टेम्परेचर क्या कर देगी, वहां का क्लाइमेट क्या करेगी, हॉट करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर जो एयर है वो किसी एरिया ठंडे जगह से आ रही है और जिस जगह पे वो हिट करेगी तो उसका क्लाइमेट क्या कर देगी, वो कूल कर देगी, ठंडा कर देगी। मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिमेंबर, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका मतलब वो हॉट होता है, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है दैट मीन्स इट बिकम्स द कूल।
So today we will stop here. We have completed our two topics, that is altitude or the height above the sea level, and second one is the winds. So today we will stop here. We will see our next topic in our next video. Thank you and have a good day.